السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی سے معطل اراکین کی۔ معطل اراکین اسمبلی کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات کا معاملہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات سے قبل اپوزیشن چیمبر میں معطل اراکین کی مشاورت۔ اپوزیشن لیڈر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مختلف آپشن زیر غور آئے۔ بیورو چیف حسن رضا سے مزید جانتے ہیں۔ حسن بتائیے۔ دیکھیں، پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین اسمبلی معطلی کے معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے آج ان کو ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا تھا اور آرٹیکل 63 کے تحت ان کو جو ہے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ان کو مدعو کیا گیا، ان کو بلایا گیا۔ اس سے پہلے اپوزیشن کے جو اراکین تھے 26 اراکین، ان کا اپنا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی طے کی گئی کہ کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا ہے کہ آئندہ وہ گالم گلوچ نہیں کریں گے، آئندہ وہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کو کس طرح سے لے کر چلیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی طے کرتے ہوئے اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے چیمبر میں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی یہاں پر پہنچیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے کہ 30 دن تک ریفرنس جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو پہنچے گا تو وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، یعنی سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ ریفرنس موصول ہوا اور انہوں نے مل کے ساتھ ہی ان کو ذاتی سنوائی کا موقع فراہم کیا ہے۔ آج ان سے جو ہے ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنی رائے قائم کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ دے سکیں گے۔ آپ کا شکریہ حسن۔ بند روڈ فیکٹری میں آتش زدگی میں زخمی ایک اور ریسکیو اہلکار دم توڑ گیا۔ جاں بحق ریسکیو اہلکاروں کی تعداد 2 ہو گئی۔ اہلکاروں کی شناخت ناظم حسین اور شعیب کے نام سے ہوئی۔ گزشتہ روز بند روڈ پر فیکٹری میں لگنے والی آگ بجھاتے ریسکیو اہلکار چھت گرنے سے زخمی ہوئے تھے۔ زین علی سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے اس بارے۔ گزشتہ روز کمبر ٹاؤن بند روڈ کے علاقے میں اقتدام میں آگ لگی جس کی جو ہے وہ 5 ریسکیو فائر فائٹنگ کے دوران 6 افراد جو ہے وہ اس ملبے تلے آگ میں جو ہے وہ زخمی تھے، جن کو جو ہے وہ اسپتال میں کیا گیا تھا، جن میں سے 2 جو ہے وہ شہید ہو چکی ہیں۔ ایک ریسکیو اہلکار محمد شعیب جس کی عمر 28 سال ہے، جس کا تعلق شادرہ سے پایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا سید ناظم حسین جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جن کی عمر 38 سال تھا اور وہ بھی جو ہے وہ بیگم پورہ لاہور کے رہائشی ہیں، جبکہ 4 ریسکیو اہلکار ابھی تک جو ہے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ایک گودام کی فیکٹری کی کا واقعہ پیش آیا تھا اور فائر فائٹنگ کے دوران ہی جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ ان پر آ گرا، جس کے بعد ملبے سے آ کر یہ 6 افراد ریسکیو اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 4 جو ہے وہ زخمی اسپتال میں ابھی زیر علاج ہیں۔ زین ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بند روڈ فیکٹری آتش زدگی میں جاں بحق ریسکیو اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر سمیت ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ گزشتہ روز فائر فائٹنگ کے دوران 2 ریسکیو اہلکار محمد شعیب سید ناظم حسین شاہ شہید ہوئے تھے۔ زین علی سے اس بارے بھی جانتے ہیں۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، گزشتہ روز جو 2 شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک ہی نماز جنازہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی ہے۔ محمد شعیب جن کی عمر 28 سال تھی، ان کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی ہے اور اس موقع پر سیکرٹری ایمرجنسی سروس جو ہے وہ ان کی جانب سے نماز جنازہ میں شرکت کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جتنی بھی ریسکیو اہلکار ہیں ان کی جانب سے بڑی تعداد سے جو ہے وہ شرکت کی گئی۔ جو محمد شعیب ہیں ان کو جو ہے وہ سلامی بھی پیش کی، جبکہ نماز جنازہ کے بعد ان کا جو ہے دعا ان کے جو ہے وہ دعا دی کی گئی۔ شریف محمد سے میڈیکل ٹیکنیشین کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، جو میٹرک کورس 26 سے تھے، جنہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران گزشتہ روز جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوران ڈیوٹی ریسکیو اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زخمی ریسکیو اہلکاروں کی بہترین علاج کی ہدایت۔ کھوکھر ٹاؤن فیکٹری میں آتش زدگی کے دوران چھت گرنے سے 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوران ڈیوٹی ریسکیو اہلکاروں کو جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ مریم نواز کا سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زخمی ریسکیو اہلکاروں کے بہترین علاج کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے، جبکہ کھوکھر ٹاؤن فیکٹری میں آتش زدگی کے دوران چھت گرنے سے 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق ہوئے تھے، اس حوالے سے آپ کو
अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का दौरान ड्यूटी रेस्क्यू एहलकारों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, मरीम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत भी सामने आया है। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट का हुक्म। केनाल रोड पर दरख्त अदालत की इजाज़त के बगैर न काटे जाएं। अगर PHA ने केनाल रोड से दरख्त काटे तो इसका लाइसेंस कैंसिल होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी 15 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। अदालत का शेखुपुरा के महकमा माहौलियात के सरबराह को फौरी तब्दील करने का हुक्म भी सामने आया है। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। केनाल रोड पर दरख्त अदालत की इजाज़त के बगैर न काटे जाएं। अगर PHA ने केनाल रोड से दरख्त काटे तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी 15 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। अदालत का शेखुपुरा के महकमा माहौलियात के सरबराह को फौरी तब्दील करने का हुक्म भी सामने आया है। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत बारे आपको बता रहे हैं। अदालत का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सामने आया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की और ये अहकाम जारी किए कि स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे के बाद जो भी खुलें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने येलो लाइन मंसूबे के हवाले से ये कहा कि किनाल रोड पर दरख्त इस अदालत की इजाज़त के बगैर ना काटे जाएं और वैसे भी किनाल रोड को विरसा डिक्लेयर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि DGPHA को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, जिस पर सरकारी वकील ने यह कहा कि DGPHA ने दरख्तों की कटाई से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि DGPHA को इस पर माजरत करनी चाहिए। अदालत ने यह कहा कि अगर किनाल रोड पर कोई दरख्त काटा गया तो PHA का लाइसेंस मनसूख होगा और अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से मजीद अहकाम जारी किए और कहा कि मेवाकी तर्ज का जोहर टाउन के इलाके में भी दरख्त लगाए जाएं ताकि वहां पर भी सूरत हाल बेहतर हो। इसके साथ साथ अदालत ने यह कहा कि हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टों को फौरी जुर्माने करें, 15 लाख रुपए जुर्माने करें और उनसे बयान हल्फी भी लें। अदालत ने कहा कि इस हवाले से अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी किसी सूरत इस हवाले से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि शेखुपुरा में तमाम भट्टा मालकान को आगाह करें कि खिलाफ वर्जी हुई तो भट्टे को मसमार कर दिया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि शेखुपुरा के महकमा माहौलियात के सरबराह को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अदालत ने इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे। इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हफीज़ सेंटर में आतिशबाजी का मामला। शहर का तजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर आज बंद रहेगा। पुलिस की जानिब से हफीज़ सेंटर के तमाम गेट को बंद कर दिया गया। हफीज़ सेंटर की बिजली बहाल न होने के बायस आज बंद रखने का फैसला किया गया। ताजिर कहते हैं कि कल भी अंदर जाने नहीं दिया गया और आज भी हफीज़ सेंटर बंद है। अपनी दुकानों पर जाकर देखें कितना नुकसान हुआ है। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, मैं सर लाहौर के बड़े तजारती मरकज हाफिज सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते हाफिज सेंटर की 3 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू के बर वक्त रिस्पॉन्स के बायस आग पर काबू पा लिया गया था और तकरीबन 25 से जायद रेस्क्यू की जो गाड़ियां थी उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। यहाँ पे तकरीबन जो नुकसान है कितना हुआ अभी इसका ताहाल जो अंदाजा है वो नहीं लगाया जा सका। यहाँ पे आज चूंकि दूसरा रोज है और जो हफीज सेंटर की इंतजामिया है, आज उनकी जानिब से हफीज सेंटर को फिलहाल बंद रखने का जो ऐलान है वो किया गया है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे इस वक्त जो बिजली की जो सप्लाई थी, जो लाइन थी, वो इस वक्त सड़ चुकी है, कट चुकी है, जिसकी वजह से जब तक उसको मुकम्मल तौर पर रिपेयर नहीं किया जा सकता तब तक जो मार्केट है उसको बंद रखा जाएगा। दुकानदार आ रहे हैं और पूछ के वापस जा रहे हैं, जबकि दुकानदारों का भी इसमें कितना नुकसान हुआ है ताहाल अभी तक दुकानदारों ने अपने अंदर दुकानों में जाके देखा नहीं है। दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि कल भी उनको मार्केट के अंदर जाने नहीं दिया गया था और आज भी अभी तक वो अंदर नहीं जा सके, जिसकी वजह से तयन नहीं किया जा सका कि कितना नुकसान जो है हुआ है। जबकि इसके साथ साथ तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 100 के करीब जो मोटरसाइकिलें थी वो भी जलकर खाक हो गई थी, जिसके लिए जो है ताजरों की जानिब से IG पंजाब से भी अपील की है
कि उनको जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं वो दी जाए। इस हवाले से जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, उनकी जानिब से भी कल बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर, आग बुझाने पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको शाबाश भी दी गई थी, जबकि इनका सेफ्टी ऑडिट कराने की हिदायत भी की गई है। और ताहाल जो हफीज सेंटर है उसको तजारती सरगर्मियों के लिए बंद रखा गया है और जो ताजा बरादरी है उनके अंदर अभी भी इस्तराब बाकी है कि उनका कितना नुकसान हुआ वो देखना चाहते हैं। लेकिन आज इंतजामिया की जानिब से हिदायत है कि आज हफीज सेंटर को बंद रखा जाएगा। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। पंजाब हुकूमत का मंडियों को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने वाले अमली इकदाम, सब्जी और फ्रूट मंडियों में ट्रकों की आमदोरफ्त और बोली के अमल की निगरानी की जाएगी। मार्केट कमेटीज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बारे 60 ऑफिसर्स की तरबीती नशिस्तों का इनेकाद। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा कहते हैं 3 मुख्तलिफ सेशंस में ऑफिसर्स को ई सिस्टम की अमली मशकों और दरपेश चैलेंजेस बारे मामलत की गई। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए उसामा, हुकूमत पंजाब ने मंडियों को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने बारे अमली इक़दाम किया है, जिसमें नाहरी और क्रशिंग के हाथमे के लिए महकमा अमूर पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सब्जी व फ्रूट मंडियों में ट्रकों की आमदोरफ्त और बोली के अमल की निगरानी की जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कहना है कि पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा, जबकि इसी सिलसिले में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की हिदायत पर मार्केट कमेटियों के सेक्रेटरीज की ई सिस्टम बारे ट्रेनिंग का इनकाद भी सामने आया है, जिसमें मार्केट कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बारे 60 अफसरान की तरबियती नशिस्तों का इनकाद किया गया है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का ये भी कहना है कि 3 मुख्तलिफ सेशंस में अफसरान को ई सिस्टम की अमली मशकों और दरपेश चैलेंजेस बारे मामलत की गई है, जबकि इसी सिलसिले में फील्ड अफसरान की सदाद कार बढ़ाने और शफाफियत के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर महकमे के तमाम अथॉरिटी को डिजिटल निज़ाम के तहत मॉनिटर किया जा रहा है। आपका शुक्रिया इमरान। महकमा सेहत में करोड़ तबादले, डॉक्टर अहमद खान सीनियर मेडिकल ऑफिसर DHQ चन्योट तायुनात। डॉक्टर मोहम्मद साकिब मुनीर को CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद लगा दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा टेक सिंह तायुनात। डॉक्टर ज़हीर अहमद से CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हाफजाबाद के इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइए इन तकर्रुर तबादलों बारे। जी बिल्कुल, महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा सेहत प्राइमरी हेल्थ कैंडिडेट डॉक्टर अहमद खान सीनियर मेडिकल ऑफिसर CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद को सीनियर मेडिकल ऑफिसर DHQ चिन्नौर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद साकिब मुनीर सीनियर मेडिकल ऑफिसर CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्नौर से CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ को एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट से हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा टेक सिंह से CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल मजीद नियाजी एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल सिटी को CEO डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अथॉरिटी साहिवाल तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद फरहान सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा को CEO डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अथॉरिटी लोधरा मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर किरण अशरफ सीनियर वीमेन मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन को CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर फैयाद बट एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गुजरांवाला डिवीजन को CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हाफजाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर ज़हीर अहमद से CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हाफजाबाद का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। इस वाले से सफाई वज़ीर फ़ातिह इमरान ने सिर्फ एक कहना था कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार लोग ही महकमे का हिस्सा होंगे, करप्ट और नाअहल लोगों का महकमे में कोई जगह नहीं है। अब लाहौर से पंजाब भर के CEOs को हिदायत है कि वो अपने अपने जिला में इजला में तमाम अस्पतालों की जो सहूलियात है उसको बेहतर बनाए, मरीजों को जितनी सहूलियत है बेहतर से बेहतर मुहैया करें। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। गुज़िश्ता रोज़ भरपूर तरीके से बरसने के बाद बादलों ने 1-2 रोज़ तक आराम करने की ठान ली। आज और हफ्ते को मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इतवार को बारिशों के नए स्पेल के आगाज़ की पेशगोई कर देगी। मौसम की सूरत हाल बारे मज़ीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। जी सोहेल। देखिए, मॉनसून क्या शुरू हुआ है कि बादलों और सूरज के दरमियान भी एक अजीब सा गठजोड़ जो है वो कायम हो गया है कि गुज़श्ता रोज़ तो बादलों ने सूरज की एक ना चलने दी और खूब बरसे, जमकर बरसे, मूसलाधार बारिश हुई। पूरे लाहौर के साथ साथ पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला चलता रहा और अब बादलों ने थोड़ा सा आराम करने की ठानी है तो सूरज खड़ाक सियान मौजूद हुआ है, लेकिन इसके साथ ही बादलों की जो टुकड़ियां आसमान पर तैर रही हैं वो सूरज को खुल खेलने का मौका नहीं दे रही।
सो इसी तरह की सूरत हाल चल रही है जी लाहौर में कि कभी सूरज हल्की फुल्की झलक दिखलाने लगता है और जब वो ज़्यादा खुल खेलने का इरादा करता है तो कोई ना कोई बादल की जो टुकड़ी है उसके सामने आन मौजूद होती है और मतला जुज़वी तौर पर अबार आलूद हो जाता है। जैसे अब से बस कुछ ही मिनट पहले अच्छा खासा सूरज चमक रहा था और जैसे ही हमने मौसम की सूरत हाल के बारे में बताना शुरू किया तो बादलों की कुछ टुकड़ियाँ सूरज के सामने आन मौजूद हुई और मतला जुज़वी तौर पर अबार आलूद हो गया। सो ये सिलसिला तमाम दिन इसी तरह चलते रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है जी कि कभी सूरज कभी बादल, कभी सूरज कभी बादल, और बारिश का आज कुछ ज़्यादा इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि आज और हफ्ते को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, मतलब तकरीबन 2 दिनों तक बादल ज़रा आराम करने के मूड में हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी तनाजुर में शहरियों को बार बार ये तलकीन की जाती है कि जो दरियाओं के इर्द गिर्द रहने वाले, पहाड़ी नदी नालों के इर्द गिर्द रहने वाले अफराद हैं वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी आपका शुक्रिया सुहेल। बारिश के बाद बिजली का तरसील निज़ाम ताहाल मामूल पर ना सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बंद। सर्कल रोड की 4 रोज़ से बिजली मुअत्तल। केनाल रोड सिंहपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में कल सुबह 5 बजे से बिजली गायब। बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी वजूहात के बायस 30 घंटों से बिजली बंद। लहसू के अमले ने सिर्फ फीडर्स बहाल करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़हद बताइए क्या मामला है ये? तक 5 बजे जो है वो बारिश हुई थी और इस बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ था। ताहम ये मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बंद है। रोड पर मछली मार्केट 4 रोज से बिजली बंद है। किनार रोड सब इलाका रावी में कल 5 बजे से बिजली बंद है, जबकि सिंहपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कल सुबह 5 बजे से बिजली बंद है। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की बाइस जो है वो 30 घंटों से बिजली बंद है। और ये कहना है कि जो है वो लश्कर का अमला जो है वो सिर्फ फीडर्स बहाल करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है। जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर जले हैं, जहाँ इंफरादी शिकायत हैं, वहाँ पर जो है वो काम नहीं किया जा रहा और लोगों की शिकायत को जो है वो दूर नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली बंद है, जबकि छोटी छोटी तकनीकी खराबियों की वजह से भी जिन इलाकों में बिजली बंद थी उन्हें भी जो है वो 20 से 25 घंटे गुजर चुके हैं, मगर ताहाल उनकी बिजली बहाल नहीं की गई। सार्फिन जो है वो शदीद गर्मी और हर्ष में सवार कर रह गए हैं। एसपीओ और जो मुतलका अमला है वो फोन करने को जो है वो तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। जी आपका शुक्रिया फ़हद। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। मुअत्तल अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। स्पीकर हंगामा राई करने वाले अरकान का मौक़िफ़ सुन रहे हैं। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की क़यादत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजा रहमान समेत दीगर भी मौजूद हैं। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला है। मुअत्तल अरकान के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात जारी है। स्पीकर हंगामा राई करने वाले अरकान का मौक़िफ़ सुन रहे हैं। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की क़यादत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजा रहमान समेत दीगर भी मौजूद हैं। मुअत्तली का ये रेफरेंस है। उस हवाले से अब अहम पेशरफ्त ये है कि स्पीकर से मुलाकात हो रही है इन अरकान की। इससे पहले आपको ये भी बताएं कि इससे कबल अपोजिशन चैम्बर में मुअत्तल अरकान ने मुशावरत की थी कि आगे का लाहे अमल क्या बनाना है और किस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली से बात करनी है। और अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए और अब इस हवाले से पेशरफ्त ये है कि मुलाकात हो रही है। लाहौर के मुकामी होटल में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से सेमिनार हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। कर रहे हैं, मसला है क्या? सोचने की बात यह है कि अज़ान हो रही है, सॉरी पता बड़ी लेट चला, जब अज़ान ख़त्म हो गई हो तो थैंक यू, आपने फिर भी बता दिया। देखिए इस हॉल में अगर 400 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और अगर 400 चेयर्स आती हैं तो अगर हम इस हॉल में 600 लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हैं और ये मैं भी समझ सकता हूँ। तो हम ये नहीं समझते कि हमारा जो रूटीन लाइफ है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारे मामलात हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, हम सिर्फ एक पानी की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों इंडिया ने सिंध तास माहिदा मुअत्तल करने की बात कर दी। सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक बात हो गई कि बस इसके बाद क्या होगा, पानी
कैसे मिलेगा, लोग प्यासे मर जाएंगे, फसलें बंजर हो जाएंगी, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, फसलें वीरान हो जाएंगी, खुदा ना खास्ता। तो सोचें कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे और अगर हमारे पास 4 लोगों के वसाइल हैं और हम 8 लोग से 12 लोग होते जाएंगे तो हम उन वसाइल को बांटते बांटते एट द एंड कहाँ तक चले जाएंगे। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि भाई ये आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं, आपका तवक्कुल मजबूत नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने यकीनन इसका ज़िम्मा लिया है कि वो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने ये नहीं कभी कहा कि आप छत से छलांग मार दें और कहें कि मेरी तो मौत का दिन मुकर्रर है, मैं छत से छलांग मार रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात ने ये नहीं कभी कहा कि आप सड़क के बीच में खड़े हो जाएं और कहें कि जनाब यहाँ से गाड़ी गुजरनी है, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मेरी मौत का दिन मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने कोई अकल समझ शऊर इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है। वो जो लोग इस बात के ऊपर बहस करते हैं कि खुदा ना खास्ता हम जो बात कर रहे हैं वो कोई खिलाफ इस्लाम बात करें, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते शरीयत और इस्लाम के कानूनों के मुनाफी जाने का तो बहुत दूर की बात है, उससे हिलने का तसव्वुर नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात ने हमें भी कुछ अकल फ़हम समझ से नवाजा है। हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया है? अगर हम अकल और समझ को इस्तेमाल करने का शऊर नहीं रखते तो हमें अशरफुल मखलूक़ात होने का कोई हक़ हासिल नहीं है। तो अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा गया है कि हम अपनी अकल समझ और शऊर को इस्तेमाल। टीपा की आमदन में नुमाया कमी, इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका, पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल आमदन कम, पार्किंग प्लाजे भी वापस ले लिए गए। टीपा से पार्किंग प्लाजे वापस लेकर LDA को देने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में भी टीपा को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए गए। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। टीपा की आमदन में नुमाया कमी है, इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका, पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल आमदन कम, पार्किंग प्लाजे भी वापस ले लिए गए। टीपा से पार्किंग प्लाजे वापस लेकर LDA को देने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में भी टीपा को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में भी टीपा को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए जाएंगे, जिसकी वजह से टीपा की आमदन में नुमाया कमी हुई है। इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका हुआ है, पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल आमदन कम, जबकि पार्किंग प्लाजे भी वापस ले लिए गए हैं। टीपा से पार्किंग प्लाजे वापस लेकर LDA को देने का फैसला सामने आया है। आइंदा माली साल के बजट में भी टीपा को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए गए। टीपा को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए गए हैं और इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से टीपा को धचका लगा है। रेवेन्यू के हवाले से आपको बताएं तो रेवेन्यू इस साल कम हासिल हुआ है, टीपा की आमदन में नुमाया कमी हुई है। इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए इस बारे। ये कि जल्दी जल्दी टीपा की माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आमदन के रवायती ज़राए कमज़ोर पड़ने और इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका लगा। दूसरी जानिब पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल होने वाली आमदन में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। हैरान कुन तौर पर आमदन के लिए टीपा के हवाले किए गए पार्किंग प्लाजे भी वापस लेकर दोबारा LDA को देने का फैसला किया गया, जिससे टीपा की माली खुद मुख्तारी मजीद कमजोर पड़ चुकी है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के बजट में भी टीपा को कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया था और रवा माली साल के बजट में भी टीपा को नजरअंदाज कर दिया गया। अब टीपा सिर्फ वासा, सुई गैस और PTCL जैसे इदारों के रोड कट फीस के डिपॉजिट वक्त पर गुजारा कर रहा है। तरक्याती मंसूबे ना मिलने और आमदनी के ज़राए सुखड़ने के बायस टीपा का माली मॉडल मजीद कमजोर हो चुका है। माली बहरान ने इदारे की कारकर्दगी को महदूद और मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। LDA की बजट तरजीहात में टीपा को मुस्तकिल तौर पर नजरअंदाज किए जाने की वजह से इदारे का बजट बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और माली खुद कफालत पर भी सवालिया निशान लग चुका है। आपका शुक्रिया ज़ैन। जाली एनरोलमेंट को चेक करने और मॉनिटरिंग ऑफिसर की भी मॉनिटरिंग होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया तरीकाकार निकाल लिया। जाली एनरोलमेंट करने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। गर्मी की छुट्टियों के बाद PMIU की टीम किसी भी वक्त स्कूल विजिट करके रजिस्टर चेक करेंगे। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। महकमा स्कूल एजुकेशन जो जाली एनरोलमेंट है चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए अलग है और PMIU जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये अपने गर्मी की छुट्टियों के बाद
स्कूलों का विजिट करेंगे और किसी भी स्कूल का सरप्राइज विजिट होगा, वहाँ जाकर रजिस्टर की होगी। ताकि टीमों की जीपीआरएस के जरिए से लोकेशन की जाएगी और चेक की जाएगी और ये भी पता किया जाएगा कि टीमों ने रोज कितने विजिट किए और किन किन स्कूलों का विजिट किया, उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। जाली यूनिवर्सिटी सफलता की सजा के खिलाफ लाइब्रेरी पंजाब भर में पहले की 18 लाख तक जाली इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी और वज़ीर तालीम ने फिर इस बात का एतराफ़ किया और इसमें लाहौर की 45,000 इन्वॉल्वमेंट भी जाली शामिल है। इन्वॉल्वमेंट का डाटा दर्ज करने के बाद स्कूलों को आउटसोर्स करने के लिए तीसरे फेज का आगाज किया जाएगा। फेज 3 में मजीद स्कूलों को ठेके पर देने के लिए पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी और 10,500 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा। आपका शुक्रिया। गुज़िर रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद क्लियरेंस रिपोर्ट जारी। शहर में बनने वाले ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स के सबब बारिशी पानी का जल्द निकास हुआ। पंजाब हुकूमत के साल 2024 और 25 के तकाबली जायज़ा रिपोर्ट तैयार। साल 2024 की बारिश में कज़ाफ़ी स्टेडियम में 18 इंच तक पानी जमा हुआ, 8 घंटे 35 मिनट में निकास हुआ। साल 2025 में वाटर टैंक के सबब कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी जमा नहीं हुआ। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। लाहौर में 10 जुलाई को होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिया, लेकिन वासा की तैयारियों और जेर जमीन वाटर टैंक की वजह से बारिशी पानी के निकास का अमल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज रहा। पंजाब हुकूमत और वासा की जानिब से जारी करदा साल 2024 और साल 2025 की तकाबली रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुज़िश्ता बरस बारिश के दौरान 18 इंच तक पानी जमा हुआ था, जिसका निकास 8 घंटे 35 मिनट में मुकम्मल किया गया। लेकिन रवां साल कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर टैंक की वजह से बारिशी पानी जमा ही ना हुआ। इसी तरह टिक्का चौक जौहर टाउन में गुज़िश्ता बरस 9 इंच तक पानी खड़ा हुआ था और इसका निकास 4 घंटे 50 मिनट में हुआ, जबकि इस साल वाटर टैंक की बदौलत वहां सिर्फ 6 इंच तक बारिशी पानी जमा हुआ और बारिश के दौरान ही इसका निकास मुमकिन हो गया। रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता बरस 10 इंच पॉन्डिंग रिकॉर्ड की गई थी, जिसका निकास 6 घंटे 25 मिनट में हुआ, मगर इस साल जेर जमीन वाटर टैंक की बदौलत रेलवे स्टेशन पर बारिशी पानी जमा ना हुआ। करीम पार्क रावी रोड पर भी बेहतरी देखने में आई। गुज़िश्ता बरस वहां 8 इंच तक पानी जमा हुआ था, जिसका निकास तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट में हुआ, जबकि इस साल वहां वाटर टैंक की बदौलत सिर्फ 4 इंच जो पॉन्डिंग है वो हुई और बारिश के दौरान ही इसका निकास मुमकिन हो गया। इसके अलावा अली ब्लॉक गार्डन टाउन, जहां पर गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, गुज़िश्ता बरस यहाँ पर 20 इंच बारिशी पानी जमा हुआ था, जिसका निकास 10 घंटे 30 मिनट में हुआ था, जबकि इस साल यहाँ पर 18 इंच की पॉन्डिंग हुई और इसका निकास 5 घंटे 15 मिनट में कर लिया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शहर में जेर तमीर और तकमील शुदा वाटर टैंक आइंदा भी निकासियात के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। आपका शुक्रिया ज़ैन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रवां साल मानसून बारिशों से हादसात के बायस 39 शहरी जाम बहक, 103 अफराद जख्मी और 47 घर मुतासर हुए। पीडीएम ने बारिशों से होने वाले नुकसान बारे फैक्ट शीट जारी कर दी। डीजी इरफान अली काठिया बोले, मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सुहेल इस बारे। देखिए, मानसून के दौरान ये एक मरतबा फिर जो बारिशों के बायस होने वाले हादसा हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया और अभी आप देखिए कि मानसून का आगाज ही है कि अभी सिर्फ दूसरा जो स्पेल है वही बरसा है और इसी दौरान पंजाब में मानसून के आगाज से लेकर अब तक मुतअद्दिद हादसा में 39 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और 103 अफराद के जख्मी होने की रिपोर्ट है। बारिशों से 47 घर भी बुरी तरह मुतासर हुए और बताया ये गया है पीडीएम पंजाब की तरफ से कि जहां बहक होने वाले अफराद में 20 बच्चे, 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई और जिनमें 24 अफराद जहां बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने के भी कुछ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और इन वाकयात में 3 अफराद की शुक्रिया सुहेल। मानसून में शराहों की हिफाजत की हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शुएब अहमद बर्द के मुताबिक हाईवे के तमाम एक्सीएन, एसडीओज और दीगर स्टाफ मुतहरिक रहें। शाहराहों का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। बारिश के बायस पड़ने वाले गढ़ों की फौरी मुरम्मत की जाए। मानसून में शाहराहों की हिफाजत के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शुएब अहमद बर्द के मुताबिक हाईवे के तमाम एक्सीएन, एसडीओज और दीगर स्टाफ मुतहरिक रहें। शाहराहों का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। बारिश के बायस पड़ने वाले गढ़ों की फौरी मुरम्मत की जाए।
वज़ीर आला राशन कार्ड का दायरा कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। वज़ीर बल्दियात दिशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वर्कर्स की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म। वज़ीर बल्दियात की मई के महीने से हाज़िरी का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान से इस बारे अपडेट लेंगे। वज़ीर आला राशन कार्ड का दायरा कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। जबकि वज़ीर बल्दियात दिशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वर्कर्स की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने के आज़म का अयादा किया गया। जबकि वज़ीर बल्दियात की मई के महीने में हाज़िरी का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत भी जारी की गई है। हाज़िरी का रिकॉर्ड मुरतब करने के हवाले से भी कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब राशन कार्ड के हवाले से अहम फैसला किया गया है। राशन कार्ड स्कीम को बड़ा धचका। मंसूबे के लिए फंडिंग में कमी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने 70% से ज़्यादा फंडिंग देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक WW ने 15 अरब रुपए की फंडिंग में बड़ी कमी कर दी। WWF अब 15 के बजाय 5 अरब रुपए देगा। आपको बता रहे हैं कि फ़ंडिंग में कमी हुई है राशन कार्ड स्कीम के, और राशन कार्ड स्कीम को यह बड़ा धचका है। मंसूबे के लिए फ़ंडिंग में कमी। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ने 70% से ज़्यादा फंडिंग देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक WWF ने 15 अरब रुपए की फंडिंग में बड़ी कमी कर दी। WWF अब 15 की बजाय 5 अरब रुपए देगा। 15 की बजाय अब 5 अरब दिए जाएंगे। राशन कार्ड स्कीम को यह बड़ा धचका है। इस हवाले से आपको बताएं कि पहले 15 अरब दिए जा रहे थे WWF की जानिब से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 5 अरब रुपए दिए जाएंगे WWF की जानिब से। अब 15 के बजाय 5 अरब रुपए दिए जाएंगे। हाथी परवेज से मज़ीद जानते हैं। हाथी बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो रजिस्टर्ड वर्कर है उनके लिए राशन कार्ड स्कीम का आगाज किया गया था, और इस स्कीम के तहत वर्कर्स को 3000 रुपये माहाना जो खाने पीने की अशिया है उन पर सब्सिडी दी जानी थी, और इसके लिए 15 अरब रुपए वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से दिए जाने थे। लेकिन अब इसको स्कीम को बड़ा धचका है इस मंसूबे को, क्योंकि वर्कर वेलफेयर के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से इस मंसूबे की मुखालफत की गई। उनका कहना है कि WWF का जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो वर्कर्स को डेथ, मैरिज और इसके साथ साथ उनके बच्चों को एजुकेशन ग्रांट देना है। लेकिन ये जो स्कीम के लिए 15 अरब रुपए की कमिटमेंट की गई है, ये जो बोर्ड मेंबर की मंजूरी लिए बगैर की गई है। जो आखिरी बोर्ड का इजलास हुआ है, इस पे एतराजात के बाद अब 15 की बजाय 5 अरब रुपए की फंडिंग होगी। 10 अरब रुपए का इस मंसूबे के लिए जो बड़ी फंडिंग है उसकी कटौती कर दी गई है। बोर्ड मेंबरान का कहना है कि WWF की इंतजामिया को चाहिए कि पहले मरहले में वर्कर्स के बच्चों को एजुकेशन स्कॉलरशिप और उसके साथ साथ डेथ ग्रांट जो वर्कर्स को अहले खाना को दी जाती है और जो मैरिज ग्रांट है वो दिए जाए। इसके हजारों केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार है, और पहले इन केसेस को निपटाया जाए, उसके बाद अगर